وہ دونوں بھائی تھے، ان کا پیشہ کیا تھا لوگ نہیں جانتے تھے۔ لوگوں کے سامنے وہ مشہور ڈیزائنرز تھے جو اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں تھے، جس کی مخفی کہانی کیا تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد بہزاد شاہ نے اپنے آپ کو سیاست میں بھی متعارف کروایا، اور پھر بس وہ دن رات ترقی کرتا چلا گیا۔ وہ کس مقصد سے آیا تھا، کیا تھا اور کیا چاہتا تھا، کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ کسی عہدے پر فائز نہیں تھا، لیکن پھر بھی کافی شہرت رہی تھی۔ اس کے اتنے اثر و رسوخ تھے کہ سیاست کے ہر عہدے کے لوگوں کو جانتا تھا، اور وہ سب سے ملتا بھی تھا، لیکن خود کسی عہدے پر فائز نہیں تھا۔ وہ اشر فیض کی کوئی خبر؟ بہزاد نے سر اٹھائے بغیر پوچھا۔ نہیں، اس کو ابھی معلوم نہیں ہوا، لیکن جلد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ، تھک گئے ہوگے۔ بھائی بولو شاہ، بہزاد نے سر اٹھائے محبت سے پوچھا۔ حافی آپ سے محبت؟ حائفہ۔ بہزاد شاہ دھاڑا تو سفیر شاہ فوراً اس کا کمرہ چھوڑتا، دروازہ بند کرتا، تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ بہزاد شاہ اس وقت کتنا پریشان تھا اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ جبکہ بہزاد شاہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کیا خبر ہے؟ سر، آپ کے نکاح کی تصاویر وائرل ہو گئی ہیں، صبح آپ کے انٹرویو کے لیے جرنلسٹ آنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کل 10 بجے۔ وہ کہتا ہوا کال کاٹ گیا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ اگلی صبح 3 پیس میں نقشہ سا تیار کھڑا تھا۔ وہ گھڑی پہنتے، خود پر پرفیوم چھڑکتے، چشمہ لگایا اور باہر نکل گیا۔ 6 فٹ کا کثرتی جسم، گندمی رنگت اور پرکشش نقوش، وہ لوگوں کو مسمرائز کر دینے کی شخصیت رکھتا تھا، اور وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا۔ وہ باہر نکلا، اس کے گارڈن میں ہی صحافی ترتیب سے بیٹھے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ السلام علیکم بہزاد شاہ۔ وہ بولا تو تصویریں اترنے لگیں، اور صحافی اپنے سوالوں کے ساتھ تیار کھڑے ہونے لگے۔ سب اپنے سوال باری باری پوچھ رہے تھے۔ آخری سوال بہزاد کے سیکرٹری نے کہا، اور وہ اس کا جواب دیتا اٹھنے لگا۔ میرے سوالات بھی رہتے ہیں ابھی مسٹر بہزاد شاہ۔ اس آواز پر وہ آنکھیں بند کر کے کھولتا ضبط کرتا مڑا۔ وہ ابھی آئی تھی، شاید اسی لیے وہ اسے پہلے نہیں دیکھ پایا تھا۔ ابھی رات ہی تو اسے سمجھا کر آیا تھا۔ آپ اندر آ جائیں شفیق صاحب، چینل کے مالک نے فون کیا مجھے۔ بہزاد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو حائفہ سکندر نے نفرت سے اسے دیکھا اور اندر بڑھ گئی، جبکہ سب جرنلسٹ اب کھانا کھانے لگے تھے، جس کا انتظام بہزاد شاہ کی طرف سے نکاح کی دعوت کے طور پر کیا گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ بہزاد کے سیکرٹری نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ وہ آنے والی ہے؟ پیسہ کس چیز کا دیتا ہوں میں تم لوگوں کو؟ وہ فون پر دھاڑا۔ سر سوری، ہمیں اندازہ نہیں تھا، وہ پہلے آفس ہی گئی تھی۔ تم سب سے تو میں بعد میں حساب لیتا ہوں۔ بہزاد غرایا اور کال کاٹ دی۔ تم باہر انتظار کرو فخر، میں اندر آتا ہوا وہ اندر آتا بولا تو سیکرٹری باہر نکل گیا۔ بہزاد اس کو ایک نظر دیکھتا سامنے صوفے پر ٹک گیا۔ سب سے پہلے نکاح کی مبارکباد وصول کریں مسٹر بہزاد۔ وہ بولی تو بہزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کوئی تاثر نہ تھا۔ اسے حیرانی ہوئی کہ وہ لڑکی جس کی باتیں وہ اس کی آنکھوں سے سمجھ لیتا تھا، وہ ایک ہی رات میں اپنے تاثرات چھپانے میں کتنی ماہر ہو گئی تھی۔ حافی کیا بول رہی ہو یہاں؟ حائفہ سکندر مسٹر بہزاد، اس نے تصحیح کی۔ خیر، میرے کچھ سوالات ہیں، مجھے آج ہی آرٹیکل بیلنس کر کے دینا ہے۔ پوچھو۔ بہزاد نے اسے اجازت دی، جیسے جاننا چاہتا ہو کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ آپ اس بار سیٹ کے لیے امیدوار بنیں گے؟ معلوم نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ عوام کے لیے کیا سوچتے ہیں آپ؟ ہماری معلومات کے مطابق آپ کوئی NGO بنوا رہے ہیں۔ ایسا کچھ ہوا تو جلد منظر عام پر آ جائے گا۔ مختصر جواب، آپ سیاست میں ہوتے ہوئے ایک ڈیزائننگ کمپنی چلا رہے ہیں، ایسا کیوں؟ میں اپنی نجی زندگی اشتہاروں میں چھاپنے کے لیے کسی سے شیئر نہیں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آخری سوال، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کے نکاح کی تصاویر سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا چکی ہیں، تو آپ کے چاہنے والے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ شادی کب کر رہے ہیں۔ وہ بولی تو لہجہ ہلکا سا لڑکھڑایا، لیکن نامحسوس انداز میں گہری سانس بھری۔ بہزاد شاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آنے لگا۔ حائفہ کی دھڑکنیں بڑھی۔ وہ بالکل اس کے سامنے موجود میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ سچ میں اس سوال کا جواب جاننا چاہتی ہو؟ کیا آپ ہر جرنلسٹ کو ایسے ہی قریب آ کر جواب دیتے ہیں؟ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اپنی جگہ سے۔ نہیں، یہ مقام صرف حائفہ سکندر کو حاصل ہے۔ میں چلتی ہوں اب، بات کر کے اچھا لگا، خدا حافظ۔ وہ آگے بڑھی، لیکن بہزاد شاہ کا لمس اپنے بازو پر محسوس کرتے وہ جی جان سے کانپی۔ حجاب کہاں ہے آپ کا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتا؟ کیا کل رات کی باتیں بھول گئی تھی وہ اس کی پونی ٹیل کو سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ ہاتھ چھوڑے مسٹر بہزاد۔ حائفہ سکندر، میرا دماغ خراب نہ کریں، نہیں تو نتائج آپ کی چھوٹی سی جان سہ نہیں پائے گی۔ ہاتھ چھوڑیں۔ وہ اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالتی ایک دم روڈ ہوئی تھی۔ ایک عام جرنلسٹ ہوں میں، اور مجھے یوں ہی ٹریٹ کریں؟ ہم ایک دوسرے کے لیے انجان ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں اب۔ اگلی بار اپنی حدود کو کراس مت کرنا۔ بہزاد نے اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔
लेकिन छुआ नहीं था उसे। आपका हिजाब मुझे अब उतरा दिखा तो जान से मार डालूंगा मैं आपको। वो उसके कान के पास झुकता हुआ गुर्राया, दूर रहे। हाइफा की धड़कन तेज हुई। उस शख्स की कुर्बत जानलेवा थी। किसी और के साथ निकाह में होते ऐसी ओछी और घटिया हरकतें आपको सूट नहीं करती मिस्टर बहजाद। वो चीख कर बोली तो सफीर शाह अंदर दाखिल हुआ। आवाज आहिस्ता रखें भाई, सब जा चुके हैं, हमें भी निकलना है। ठीक है, फाखरा फाखरा को भेजो, वो बोला और हाइफा से दूर होता खड़ा हुआ। फाखरा, ऊपर मेरे कमरे में जाओ, मेरी अलमारी में जहाँ मेरे कपड़े हैंगे वहाँ स्टॉलर्स होंगे, 2 सफ़ेद रंग वाले लेकर आओ। उसने काम वाली के आते ही कहा। हुज़ैफा ने वहाँ से निकलना चाहा। हाफी वो धाड़ा। वो चाहता था कि उस लड़की को आराम से डील करे, वो उसे इतना गुस्सा चढ़ा रही थी। फाखरा ने उसे लाकर स्टॉलर दिया और वो चली गई। वो हाइफा के पास आया और उसे स्टॉलर सर पर दिया, जो उसे ना जाने कब से खरीद कर रखे थे उसके लिए। बल्कि वो तो हर बार ही जब अपने लिए शॉपिंग पर जाता उसके लिए स्टॉलर्स लाजमी लेता। वही मखसूस सफ़ेद लिबास पहना और निकल गया। अब उसे पता था कि उसे क्या करना है। अपने लैपटॉप पर झुके उसने उसके घर के कैमरास को हैक किया और बाहर निकल गया। पीछे के दरवाजे से अंदर दाखिल होते उसने अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ाए जिसे जैसे घर का सारा नक्शा उसे हिफ्ज हो। वहां पहुंचते ही कान पर लगे ब्लूटूथ को ऑन किया। कहाँ है वो? रास्ते में। तुम्हारे पास 10 से 12 मिनट है, उसे मुत्तला किया गया। ओके। वो अंदर दाखिल हुआ और सीधा उस अलमारी के पास गया। नीचे बैठते अलमारी को खोलते सामने से फजूल कपड़े हटाए तो पीछे वो दीवार में नस्ब लॉकर नजर आया। इस पर पासवर्ड है, तुमने बताया नहीं। वो गुस्से से पागल होने को था। अगर वो बेवकूफ़ लड़की आती तो वाकई मारी जाती। हैक कर लिया है पासवर्ड मैंने, जल्दी खोलो। वो रास्ते में बहजाद शाह जो अपने आदमी के साथ ही खड़ा था बोला, आप खौफजदा हैं? हाँ। दूसरी तरफ से तवक्को के ऐन मुताबिक जवाब आया। दूसरी तरफ तवक्को के बरक्स जवाब आया। वो कहाँ कभी खौफजदा होने वाला था? उस बेगैरत आदमी से खौफजदा हैं आप? नहीं, तुम्हारी वहाँ मौजूदगी से हूँ। मैं तो जैसे अपनी हिफाजत कर नहीं सकता। वो हंकारा भरता बोला। शाह, 5 मिनट, निकलो फौरन वहाँ से। मुखालिफ धाड़ा तो वो फाइल निकालता, उसकी जगह दूसरी फाइल रखता, कपड़ों को वैसे ही तरतीब से रखता। उठने लगा। वो काली चादर सुर्ख वाले से ऊपर आएगी। उसके कान में लगे आले से आवाज़ गूंजी क्योंकि मुखालिफ दूर बैठा उसकी शर्ट में लगे कैमरे के जरिए सामने का मंजर देख सकता था। सफ़ीर शाह अपने भाई की बारीक बीनी से मुतासिर होता उठा और कमरे से निकल गया। कैमरा बंद किया और पीछे की तरफ कदम बढ़ाए जहाँ से वो आया था। लेकिन नीचे कमरे की लाइट जले देख वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे गया और दरवाजे को देखा जो नीम वाह था। उसने अंदर झांका। ये उनके काम के खिलाफ था लेकिन तजस्सुस के मारे, और वहाँ वो भी तो मौजूद था। कोई सिनफे नाजुक बिस्तर पर बेढंगे अंदाज में पड़ी थी। वो फौरन अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा लॉक किया। उस घर में उसके अलावा और कौन था? उसके पास गया जहाँ वो आड़ी तिरछी सुकड़ी सिमटी सी लेटी बिना कंफर्टर के एसी फुल स्पीड में चल रहा था। बेवकूफ़ लड़की। उसने एसी बंद करते सफ़ीर शाह ने उसे देखा और कदम खिड़की की तरफ बढ़ाए। यहाँ से वो मुस्तकबिल में भी आसानी से आ जा सकता था। वो जाते हुए वापस मुड़ा और उसका दुपट्टा नीचे से उठाकर उसके मुंह पर फेंका। मुखालिफ का इस तरीके से दरवाज़ा खोलकर और बिखरे हुलिये में सोना उसे जहर लग रहा था। वो गहरी नींद में थी, इसलिए उसकी आहट और अपने चेहरे पर दुपट्टा महसूस ना कर पाई। अगर उसने नींद की गोलियां ना खाई होती तो उस शख्स की नफरत भरी निगाहें अपने वजूद के आर पार होती महसूस करके वो डर से ही मर जाती शायद। उसका फ़ोन बजा तो उसने कान से लगाया। तुम्हें सज़ा मिलेगी देर से आने की, और उससे दूर रहो, तुम्हारे हक में यही बेहतर है, मुखालिफ ने कहा तो वो सर तासुरात से बिना उसे देखे वहाँ से निकल गया। फाइल? उसने जाकर वो फाइल सामने की। तुम 15 मिनट लेट हो शाह, मुखालिफ ने सख्ती से कहा। अगली बार कोशिश करूंगा जल्दी आने की, सफ़ीर शाह ने बेफिक्री से कहा। तुम इन सब में उस लड़की को क्यों ला रहे हो? क्यों ला रहा हूँ ये आप पूछ रहे हैं? नफरत है मुझे उससे। और किसने हक दिया तुम्हें ये नफरत करने का? उससे दूर रहो, हमारे काम में सिनफे नाजुक की कोई गुंजाइश नहीं निकलती। सोने जा रहा हूँ मैं भाई। वो कंधे उचकाता बाहर निकल गया तो मुखालिफ ने सख्त निगाहों से उसकी पुश्त को घूरा। बहजाद शाह जानता था महाफैज उसे क्यों पसंद नहीं थी, लेकिन इन सब में उस लड़की का कोई कसूर नहीं निकलता था तो वो क्यों सज़ा की मुस्तहिक ठहरती। लेकिन ये बात सफ़ीर शाह को समझाना मुश्किल था। सफ़ीर शाह जाकर सोया और फिर कई दिन अपने कामों में मसरूफ़ रहा। फ़ोन उठाओ मेरा यूफूल। उसने माहा को कितनी कॉल्स की थी आज 12 दिनों बाद, लेकिन उसने एक कॉल ना सुनी थी, इसलिए अब मैसेज करके डराया था। और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक उस डरपोक लड़की ने अगली बेल पर ही कॉल उठा ली। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी बेवकूफ़ लड़की? भाई नाम मत लो उसका, मुझे मिलना है तुमसे। सफ़ीर शाह आगाज़ में गुस्से में और फिर कुछ सोचता हुआ मुस्कुराता हुआ पुरस्कार लहजे में बोला, एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ।
क्यों, मिलकर बताऊंगा क्यों। आज कॉलेज से वापसी पर ड्राइवर को लेट वक्त बताना, मैं ऐसा नहीं करूंगी, वो चीखी और फिर धड़कते दिल के साथ फोन काट दिया। महाफैज, बहुत बुरा किया तुमने खुद के साथ, वो कहता उठ खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। उस लड़की के बताए मतलूबा वक्त पर वो उसके कॉलेज के बाहर मौजूद था। फिर शानो शौकत से उतरता कॉलेज में दाखिल हुआ और सफ़ीर शाह को कौन नहीं जानता था। फौरन उसे ऑफिस में भेजा गया। हमारे लिए खुशी का बाइस है आपका आना सफ़ीर शाह। प्रिंसिपल तो फूले नहीं समा रही थी। पार्ट 2 आर्ट्स, रोल नंबर 802, महाफैज को बुलाएं। लेकिन आप कैसे जानते हैं उसे, और मुझे सवालात के जवाब देना पसंद नहीं। जल्दी बुलाएं उसे, मुझे देर हो रही है। हम ऐसे किसी को नहीं बुला सकते सर, बात समझें। और उसके भाई, तो आप ये चाहती हैं मिस हुमा कि आपके बच्चे को स्कूल वापसी पर लाते, आपके ड्राइवर को कुछ लोग रोक लें और आपके बच्चे को मैं बुलाती हूँ। वो फौरन कान से फ़ोन लगाते महाफैज को बुलाने का कहने लगी। आगे भी ऐसा ही करना है आपने, और मुझे उम्मीद है ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। उसने जेब से एक पैकेट निकालते उनकी मेज़ पर रखा और बाहर निकल गया। वो जानता था किस इंसान को किस तरह डील करना है। माहा को नहीं बताया गया था, इसीलिए वो अपने ड्राइवर का सोचती बाहर निकल गई। लेकिन सामने उसकी सफ़ेद गाड़ी को देखते उसका वजूद खौफ से कांपा। उसने वापसी के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन सफ़ीर शाह के गार्ड ने ऐसा होने नहीं दिया। सर, इंतज़ार कर रहे हैं, उसने झुककर आहिस्ता से कहा, और फिर सीधा खड़ा हुआ तो महा ने खौफ से कांपते वजूद पर काबू पाते कदम उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ाए। वो शख्स उसे हर बार पहले से ज़्यादा खौफजदा कर देता। वो क्या चाहता है उससे वो नहीं जानती थी, जो उसे यूं सरे राह मिला था। और अब 10 मिनट देर कर दी तुमने महाफैज आने में। उसे बाहर ही खड़े देख सफ़ीर शाह ने गाड़ी का शीशा नीचे करते कहा तो वो डर कर उछली। मैं अंदर बैठो प्लीज़, अंदर बैठो, नहीं तो मैं तुम्हें हाथ लगाकर बिठाने पर कोई दिक्कत महसूस नहीं करूँगा। यकीनन तुम्हारी रूह परवास कर जाएगी फिर मिस महाफैज। वो गुर्राया तो वो फ़ौरन बैठ गई, लेकिन वो बिल्कुल दरवाजे के साथ चिपक कर सिमट कर बैठी थी। उसकी ये एहतियात सफ़ीर शाह ने नफ़रत से देखी थी। फाइल लेने में तुम नाकाम रही हो, उसकी सज़ा तो बनती है ना अब, वो जहरखंद लहजे में बोला तो महा सर उठाते उसे देखने लगी। आंखें नमकीन पानी से भरने लगी। महाफैज, रोना नहीं, तुम्हारे आंसू ये मुझे मजीद गुस्सा दिलाएंगे वरना, वो बोला तो महा ने तेजी से आंखें रगड़ी। गुड, सीख जाओगी, सफ़ीर शाह ने कहते सिगरेट सुलगाया और उसे फुर्सत से देखा, क्योंकि अब वो जो उसे कहने वाला था उसे जानकर यकीनन सामने वाले की रूह परवास कर जानी थी। हाइफा ने वहां से निकलना चाहा। हाफी वो धाड़ा था, वो जितना चाहता था कि उस लड़की को आराम से डील करे, वो उतना उसे गुस्सा चढ़ा रही थी। फाखरा ने उसे लाकर स्टॉलर दिया और वो चली गई। वो हाइफा के पास आया और उसे वो स्टॉलर सर पर दिया जो उसने न जाने कब से खरीद रखा था। बल्कि वो तो जब भी बाहर अपने लिए शॉपिंग करता उसके लिए स्टॉलर्स लाजमी खरीदता था। इज्जतें छीनने वाले ये ढोंग नहीं रचाया करते शाह साहब, वो उसकी आंखों में देखते बोली। अपने छोटे से दिमाग को इतना जोर मत डालो, और खबरदार अब ये उतरा तो। वो उसके सर पर अच्छे से घुमाकर स्टॉलर देते हुए बोला, ड्राइवर छोड़ देगा, ज़रूरत नहीं है मुझे, किसी और के शोर से मुझे मदद लेने की कोई दिलचस्पी नहीं। हाइफा ने बैग उठाकर कंधे पर रखते कहा, मेरा जब्त मत आजमाए हाइफा सिकंदर। बहजाद ने उसे बाजू से पकड़ते झटके से उसका रुख अपनी तरफ किया। तो क्या नहीं है आप किसी और के शोहर? मैं सब कभी नहीं, मैं मरकर भी कोई तफसील या सच्चाई नहीं सुनूंगी। ये बात आज और अभी अपने जहन में बिठा लें, कितनी बड़ी मजबूरी भी रही हो, मुझे कभी मत बताइएगा। हाइफा सिकंदर बस, हाइफा सिकंदर बस आप जैसे अमीरों की असलियत नहीं जान पाई, पहले भूल गई थी कि मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। एक छोटी सी जर्नलिस्ट जिसे मशहूर सियासतदान और डिज़ाइनर कंपनी के मालिक बहजाद शाह ने महज इस्तेमाल इस्तेमाल इस लफ्ज़ का मतलब समझ आता है तुम्हें हाफ़ी? वो तड़प गया था उस लड़की के लफ्ज़ों पर। आप मर भी जाए ना बहजाद तो हाफ़ी आपकी बेवफाई आपको माफ़ नहीं करेगी, और आइंदा कभी मुझे हाथ लगाने की गलती मत कीजिएगा। समझ लें हम कभी मिले ही नहीं थे। मर गई हाफ़ी। अगर कभी मुस्तकबिल में हमारा सामना हुआ तो एक आम जर्नलिस्ट हाइफा सिकंदर का मिस्टर बहजाद शाह से होगा बस। वो कहती उसकी आंखों में देखती, अपने आंसुओं को हलक में उतारती बाहर निकल गई। बहजाद शाह ने कमरे में मौजूद हर चीज़ तोड़ डाली थी। वो जिंदगी में कभी इस मकाम पर भी पहुंचेगा उसे अंदाजा न था। वो तो बहजाद शाह था, कभी ना गलत करने वाला, कभी गलत ना करने वाला, कभी ना हारने वाला। लेकिन आज उसे ऐसी मार हुई थी कि वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो जब तक घर के अंदर ना चली जाए उसके साथ साए की तरह रहो, नहीं तो बहजाद शाह तुम सबकी खाल उधेड़ कर रख देगा। वो कॉल करता धाड़ा और अपने कपड़े बदलता बाहर निकल गया।